Hello everybody, so I'm back again with another video, and in this video I'll be sharing the tips and tricks of how you can prepare NCRT of English literature for TGT English exam or PGT English exam, okay, for KVS. So listen, what I did was first of all I purchased all the NCRTs from class 6 to 12th. Then I started reading each and every story line by line. Currently I'm not having those books, otherwise I would have shown them to you, because at that point of time, while I was preparing, I was in some time some period I was in Varanasi, and after that I went to Delhi. Okay, so I left all my NCRTs there only because it was very difficult for me to carry those heavy books and all separate notebooks that I had purchased, all the notes that I had made. So I think everything I lost because I just left them over there only. But I can help you out because I know that what and how did I prepare my own notes. So line by line, I started reading all the stories. I first of all took the book of class sixth, then seventh, then eighth, ninth, like serial wise. Okay, so suppose I currently the book of class six is changed, but last year or day before, or sorry, or before last year, it was different book. It was I don't remember the name exactly. So listen, whenever we start reading this story, okay, we will talk about the poem later on. First of all, we'll talk about the story. So we have to remember the character names, okay, names of every character. Second thing is the setting, like किस जगह पे उस स्टोरी की सेटिंग है, लाइक उस किसी प्लेस का नाम है तो वो प्लेस हमको याद करना है. कोई जो लीड कैरेक्टर है उसने कुछ इफ ही और शी had done something or taken any step in any scene or in any situation, what was the reason behind that situation, what was the reason behind the step that he took or she took. Okay, so these things you have to remember, and this is very important, reason behind each and every situation which is related to the lead character. Okay, suppose there was a story where a scientist gets invisible, है ना. मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा स्टोरी था उसमें. सो इट वाज लाइक व्हाई डिड ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, दिस क्वेश्चन वाज देयर. तो आपको उसके पीछे का रीज़न, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको चूज़ करना था कि उसने अपनी ड्रेस क्यों निकाल दी, बिकॉज़ वो ड्रेस निकालने के बाद ही वो इनविजिबल हो जाता था. सो दिस वाज़ द थिंग. लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इनविजिबल हो तो जाता था, पर उस करंट सिचुएशन में क्या हुआ था ऐसा कि उसको अनड्रेस होना पड़ा, लाइक. सो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. एंड देन in poems we have to remember the name of the poets, and in story also the name of the writers of the story. And in poem, we also have to remember the poetic devices, right? Like stanza line by line. Suppose in the written exam, if a stanza comes and from a particular line, it asks you to find out the poetic device that is mentioned in this particular line. So how will you able to find it out? So that is the reason that you have to know all the figure of speech and the poetic devices. Okay, apart from this, लाइक राइम स्कीम. ओके, राइम स्कीम वी हैव टू प्रिपेयर, कि राइम स्कीम हम कैसे निकालते हैं. अगर आप वो प्रिपेयर कर लियो तो आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकाल लो लेंगे. तो वो हो गया आपका. उसके अलावा आप जो है कि यही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनमें, ठीक है. बस वही कि जब किसी कहानी को आप बार-बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी. और एनसीईआरटीज़ की स्टोरीज़ जो हैं वो टाइम पास के लिए भी बेटर हैं. आप टाइम पास के लिए उसको पढ़ते रहिए समझ कर के साइड में, चलो ठीक है बोर हो गए तो एक कहानी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो बाकी चीज़ें आप तब तक प्रिपेयर करो, और बोर हो गए तो एक कहानी पढ़ लो, है ना. सो दैट विल बी वेरी मच फन, एंटरटेनिंग एंड पीसफुल, एंड ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन.
okay, and very much beneficial also. So this is how I prepared my notes, and this is how you'll prepare your notes. And there's a channel, Be Incredible. So she teaches MCQs related to the chapters of NCRTs. So at that point of time, she was teaching. Maybe she will again teach. So you can then practice the MCQs from there. And one more channel was there. The name I don't remember, but a ma'am was there. She Swati, I guess her name was. I don't remember exactly, but इसके अलावा आप एनसीईआरटीज़ को ओपन करके इनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। साथ में जब वो इस पोएम को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप साथ में बुक ओपन करके रखी रहिए सामने, और आप पढ़ते रहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लिटरेचर की प्रिपरेशन में कुछ और पूछना होगा, लेकिन लैंग्वेज की बात हम बाद में करेंगे। आप एनसीईआरटीज़ कैसे प्रिपेयर करें, यही पूछ रहे थे। एंड द अदर थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट जो आप पीवाईक्यूज़ पूछ रहे हैं, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? सो 2022-23 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी पीवाईक्यू का एनालिसिस आई विल डू ऑन माय ओन, ठीक है? मुझे मिल गया है पीवाईक्यू, और गूगल से ही मिला है, आप लोग गूगल से निकाल सकते हैं। बट 2022 के पहले जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 में, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, लिटरेचर से रिलेटेड, राइटर्स से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड। बहुत सारे राइटर्स पूछे थे, 20 से 21 के आसपास राइटर्स पूछे थे उसमें। सो अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम आएगा, लेकिन क्योंकि पैटर्न लास्ट टाइम चेंज हो गया था, तो मतलब 99% चांस है कि एनसीईआरटी बेस्ड अगेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो आप एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन करिए, और बाकी की जो पीवाईक्यूज़ हैं लास्ट ईयर वाले, वही सिर्फ़ एनसीईआरटी में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज़ उसके पहले वाले जो 2018 है, उसके पहले के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें से एनसीईआरटी कभी पूछा ही नहीं था। तो इस वजह से लिटरेचर के लिए आप सिर्फ़ लास्ट वाले पीवाईक्यू पे आप प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी ग्रामर और अदर चीज़ों के लिए आप पुराने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्ड एनालिसिस के कौन-कौन से टॉपिक्स है, किस-किस पोर्शन में रिटन एग्ज़ाम के कितने क्वेश्चंस आए थे, ओके? सो फिलहाल के लिए इतना ही, एंड आई होप अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी में मुझे किन-किन पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ ग्रेट डे एंड स्टडी हार्ड।